Hello everyone, this is Bhupender. Today in this video, I am going to discuss with another poem of class 12th NCERT book Flamingo. The poem itself is here, Aunt Jennifer's Tiger. It is the sixth poem of class 12th Flamingo book. I am here with this poem to discuss about the writer first. The writer here it is Andina Rich. Andina Rich is was an American poet, a greatest feminist, born in 20th century in America. She was born in 1929 and died in 2012. She wrote numerous non-fiction books and also wrote a dozen volumes of poetry. Her poetry totally dedicated to the women who are living under the control of her husband in male-dominating society. So, when we will read the poem, we will go through the different characters used by the poet. The title, the first of all, if we talk about the title first, there are two symbolical world of two, you can say, living. The one living world of Aunt Jennifer's, and the other world, symbolical world of tigers. And when we talk about Aunt, represent the world of the suppressing woman by her husband. So Aunt represent an old lady used by the poet. She is she is suffering from her husband obligations, whereas talking about the tigers who are signifies here a bold, fearless, calm, gentle, sleek, chivalric attitude. And this is a very unique title where the poets describe the meaningful attitudes of her poetic devices used by the poet. So when we go through the poem, we will read about the tigers. Tigers are the skills of Aunt Jennifer. She is onboarding on canvas the picture of tigers. And I told you earlier that tigers represent the symbolical world of bold, brave and chivalric attitude. But the life of Aunt Jennifer is totally different to tigers. Although she represents her idol as a tiger in the poem, because she said one day I will become like tigers. So let's discuss about the poem first. In this poem there are 12 lines, 3 stanzas. So first of all I will discuss about the poem first. Let's discuss. Aunt Jennifer's tiger pranced across the screen, bright topaz Daniels of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in the sleek, chivalric certainty. In the second stanza, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of her uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. In the last and final stanza, when Aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with the ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. So this is a very beautiful poem written by Andina Rich. In this poem, she directly talks about the two symbolical world, the world of Aunt Jennifer and the world of tigers. She represents that tigers is a symbolical meaning here, the brave, fearless, gentle, sleek, but the world of Aunt Jennifer is something different to the world of tigers. Here the Aunt Jennifer is living a submissive life. She is a very, you can say, submissive woman and living under the control of her husband. Her husband obligation, her husband duties are always performed by her. That's why she is suffering a very painful life, living a painful life. And tiger is enjoying a fearless life. This is a totally different to two worlds here. So let's explanation of the first stanza.
Aunt Jennifer's tiger pranced across a screen. Here I'm going to discuss first the difficult word meaning here. Prance mean to walk smoothly in gentle way, that energetically walk and run. जब आप बहुत ही एनर्जेटिकली तरीके से आप चलते हो या दौड़ते हो, दैट इज कॉल्ड प्रेंस. प्रेंस का मतलब होता है लीप फॉरवर्ड. लीप फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, आगे एक जैसे जैसे होता है ना, राजा चलता है, जैसे राजकुमार चलता है, शाही लोग चलते हैं, ऐसे होता है प्रेंस. ब्राइट टोपाज डेनियस. ब्राइट का मतलब होता है ए प्रीशियस स्टोन इन येलो कलर. एक येलो कलर का एक बहुत ही कीमती पत्थर होता है, जैम, काइंड ऑफ जैम, येलो जैम. डेनियंस का मतलब ड्वेलर्स. डेनियंस का मतलब होता है ड्वेलर्स, रहने वाले, निवासी. ड्वेलर्स, राइट. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट. प्रेंस का मतलब है मूव फॉरवर्ड एनर्जेटिकली, मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जेंटली या एनर्जेटिकली, या बताया था मैंने. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ का मतलब अंडर द ट्री. दे पेस का मतलब मूव, चलना, मूव. इन द स्लीक का मतलब जेंटल. एंड सैवरी का मतलब है हीरोइक. जैसे नाइट्स वगैरह जो होते हैं, वो जैसे जिस तरीके की लाइफ जीते हैं नाइट्स वगैरह, हीरोइक. एंड सर्टेनिटी का मतलब है जो कॉन्फिडेंटली. सो मीनिंग अबाउट. फ्लटरिंग का मतलब है शेकिंग, राइट. वूल का मतलब होता है जो जिससे वो बुन रही है ना. Find even the ivory. Ivory is the tusk of an elephant. Made an article of tusk of an elephant. यानी कि आइवरी वो होता है जो टस्क होता है, हाथी के दांत या जो दांत से जो चीजें बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड आइवरी. द आर्टिकल मेड बाय द टस्क ऑफ एन एलिफेंट. सो हार्ड टू पुल इज डिफिकल्ट. हार्ड टू पुल का मतलब है डिफिकल्ट. मैसिव का मतलब है ज्यादा, तो हैवी. मैक्सी का मतलब, मैसिव का मतलब बहुत ज्यादा. वेट का मतलब है वजन. अंकल्स वेडिंग बैंड का मतलब है रिंग. एंगेजमेंट रिंग या वेडिंग रिंग. सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड व्हेन आंट इज डेड. द टेरिफाइड का मतलब भयभीत कर देना. fearful and lie in the ring with the odils. Odil का मतलब bad experiences. Master by, controlled by. And the panel, that canvas. And go on prancing का मतलब होता है, that's the, you can say that jump and walk energetically. prance करना, that same word is used here, prancing. Proud and unafraid, बिना डरे के. Aunt Jennifer's tiger pranced across a screen, bright topaz denizens of a world of green. In the first two lines, the poet talks about the life of tigers as compared to the life of Aunt Jennifer's. Aunt Jennifer's embodying tigers on her canvas, and her tigers walks gently and energetically on her canvas. In the back of the tigers, there the green world is called forest, and they are the dwellers of the forest. They are the inhabitant of the forest, and the tiger's colors is compared with the color of topaz. द टोपाज कलर का जो कलर है, जैसे येलो इस कलर का होता है, ब्राइट येलो होता है. एक प्रीशियस गोल्ड का जो रंग होता है, कलर है, वही कलर उन शेरों का था जो कंपेयर किया गया है टोपाज के साथ. तो वो निवासी हैं उस फॉरेस्ट के, और वो उसके कनवास पर बड़े ही एनर्जेटिकली तरीके से मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं.
जो टाइगर एना एंड जेनिफर ने एम्बोर्ड किया है अपने कनवास के ऊपर। तो यहां पर फर्स्ट देखेंगे तो ब्राइट टोपाज जो है ये मेटाफर यूज किया गया है। मेटाफर यूज इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, द फर्स्ट इज द टोपाज एंड द वन इज टाइगर स्किन। टाइगर स्किन का कंपैरिजन किया गया है, जो कलर है टोपाज का, तो जो स्टोन है प्रीशियस स्टोन, उसके कलर के साथ कंपेयर किया गया है डेनियन जो निवासी हैं उस जंगल के। नेक्स्ट, दे डू नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री, दे पेस इन द स्लिक सेवरिक सर्टेनिटी। सो दे यूज फॉर द टाइगर्स, दे डू नॉट fear from the man who come for hunting. So यहाँ पर जो trees use for forest and there is a man used as a hunter. Hunters के लिए ये यूज किया गया मैन। जो लोग उन जो शिकार करने के लिए आए हैं शेरों का, उनसे भी वो शेर घबराते नहीं है, बिकॉज दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ आंट जेनिफर्स। ये दुनिया है आंट जेनिफर की, इट इज अ सिंबलिकल वर्ल्ड ऑफ आंट जेनिफर। सो वो उनकी लाइफ है, वो उनका जीवन है। तो वो उनके मतलब जो आंट जेनिफर्स के जो एक वर्ल्ड है जिन्होंने उन्हें खुद बनाया है, तो उसमें भी वो उन लोगों से डरते नहीं है, उन शिकारियों से भी डरते नहीं है जो उन पेड़ के नीचे या उन जंगल में खड़े हैं। दे पेस इन स्लीक, और वो जो दे का यूज है टाइगर्स के लिए, वो मूव कर रहे हैं एक जेंटल तरीके से आगे अपने बढ़ रहे हैं अपने ही चाल में, एक हीरोइक तरीके से वो अपने एक एटीट्यूड में चल रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। जो टाइगर्स एम्बोर्ड किए हैं जो आंट जेनिफर ने, वो अपने कॉन्फिडेंसली चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं और उनको डर नहीं है उन लोगों का जो उनके शिकार करने के लिए आए हैं। इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज की है, दे डू नॉट फियर एंड सेमीकोलन का यूज करते हुए नेक्स्ट में दे पेस इन, तो एनाफोरा का यूज किया गया है लिटरेरी डिवाइस में, एनाफोरा का यूज किया गया है। एनाफोरा कंजक्टिव लाइंस में स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड and continue in the next line. They do not fear and they pace in the sleek fabric. So anaphora is literary device used by the poet. And here is the other thing which is talk about now. Celeric and certainty. There is two conjunctive जो word का use किया गया है, consonant sound in the beginning of conjunctive letters. So उसमें use किया था alliteration का use किया गया है, alliteration used by the poet. And I will discuss literary devices later. Now, Aunt Jennifer's finger flattering through her wool find even the ivory needle hard to pull. Now, next two lines में हम पढ़ेंगे इसमें कि Aunt Jennifer's while unboarding the tiger on the wool, her finger were fluttering, her finger were shaking because she was afraid of her husband. She might feel that her husband would come and scold her. तो उसको ऐसा लगता है उसका हस्बैंड आएगा और उसको डांटेगा, इस वजह से वो अपना जो काम कर रही थी एम्बॉर्डिंग का, उस वक्त उसकी उंगलियां जो थी वो कांप रही थी। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, यहाँ तक कि जो आइवरी नीडल की सुई से जो एम्बॉर्डिंग का काम कर रही थी, यहाँ तक कि उसको चलाना भी उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। द मैसिव वेट ऑफ हर अंकल वेडिंग बैंड, यहाँ पर मैसिव वेट ऑफ हर अंकल वेडिंग बैंड का इट इज यूज हेयर, जहाँ पर ये यूज किया गया है ये बताने के लिए कि जिस प्रकार से उसने अंगूठी उसने अपनी उंगली में पहन रही है, ये एक प्रकार की निशानी है कि वो अंडर कंट्रोल अप बाय हर हस्बैंड, कि वो अपने हस्बैंड के द्वारा कंट्रोल है, कि उसका हस्बैंड का उस पर अधिकार है कि वो उसको कंट्रोल करे। तो वो जो रिंग है सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वो उसकी उंगली में वो पहनी हुई है उसने, तो सिट्स का यहाँ पर पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। तो वो उंगली में उसकी जो अंगूठी है वो ये बताती है कि वो अंडर कंट्रोल है अपने हस्बैंड के और उसकी ड्यूटीज़ और उसके ऑब्लिगेशन के अंडर वो रह रही है। When aunt is dead, her terrified hands will lie. जब आंट वो मर जाएगी, her terrified hand will lie, तो वो उसके जो कांपते हुए हाथ हैं वो उसके साथ रहेंगे, जीवन भर वो ऐसे ही डरती रहेगी।
स्टिल रिंग्ड विद ऑडियंस वाज मास्टर्ड बाय, और वो हमेशा ही अपने हस्बैंड के द्वारा वो डरी हुई होगी, सराउंडेड होगी, अपने बैड एक्सपीरियंस से घिरी हुई होगी जब वो अपने आखिरी स्टेज पर पहुंचेगी। तो आखिरी स्टेज पर भी उसके यही दशा होगी, यही हाल होगा जब वो आखिरी समय में भी अपने हस्बैंड के बुरे एक्सपीरियंस के नीचे अपनी ज़िंदगी को गुजार रही होगी, तो उसके हाथ भी इसी तरीके से कांपते रहेंगे। द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अफ्रेड, और जो टाइगर है जो उसने अपने पैनल के ऊपर बनाए हैं वो हमेशा इसी तरीके से अपनी चाल में चलते रहेंगे, इसी तरीके से एनर्जेटिकली रूप से चलते रहेंगे, इसी तरीके से उनको अपने आप पर गर्व महसूस होता रहेगा, इसी तरीके से वो जिंदगी भर अफ्रेड रहेंगे, इनसे किसी से कोई उनका डर नहीं रहेगा। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है, तो यहाँ पर फ्लटरिंग ऑफ फिंगर का यूज़ किया गया है, एफ एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, एफ जो साउंड है एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, एलिट्रेशन इन फ्लटरिंग एंड फिंगर्स, राइट, फ्लटरिंग एंड फिंगर। द मैसिव वेट ऑफ हर अंकल्स वेडिंग बैंड, ऐसा नहीं है कि जो अंगूठी उसने पहन रखी है उसका वजन बहुत ज़्यादा भारी है, ये मतलब नहीं है, इसमें हाइपरबोल है। हाइपरबोल का मतलब एग्जरेट द थिंग्स इन हाई लेवल, किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा कर बोलना। यहाँ पर जो अंगूठी है इसको ऐसे बताया गया है कि उसका इतना ज़्यादा वजन है कि वो उसको सहन नहीं कर पा रही। एक्चुअली वजन नहीं है उस अंगूठी में, वजन की वजह से वो परेशान नहीं है, बट जो एक कंडीशनल जो है एक मैटेरियल लाइफ जो है वो जी रही है, वो अंगूठी जो उसने पहनी हुई है उसके जो ड्यूटीज है उसके नीचे वो दबी हुई है, तो उसका वजन है ये, उस अंगूठी का वजन नहीं है। हाइपरबोल किया गया यहाँ पर जो मैसिव वेट ऑफ हर अंकल्स वेडिंग बैंड, तो जो बैंड है जिस तरीके की वो जिंदगी जी रही है मैरिटल लाइफ, तो उस लाइफ के ड्यूटीज के नीचे वो दबी हुई है, तो यहाँ पर हाइपरबोल का यूज किया गया है। सिट्स हैवीली, बैंड सिट्स हैवीली, तो यहाँ पर एक इंसान की तरह जो अनएनिमेट थिंग को पर्सनिफाइड किया गया है, ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, तो यहां पर एक पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन, सिट्स हैवीली, राइट, बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड व्हेन आंट इज डेड her terrified hand will lie with still ringed is used as pen का यूज किया गया, PUN, pun is used for define two word meaning of a word, single word, मतलब दो अर्थ निकाले जाते हैं एक शब्द के, तो उसको बोलते हैं पन। एक रिंग का मतलब है अंगूठी, एक रिंग का मतलब घिरे हुए होना, सराउंडेड बाय, तो यहां पर पन यूज किया गया सराउंडेड बाय। तो स्टिल रिंग्ड विद ऑडियंस, यानी कि वो किससे घिरी हुई होगी, बैड एक्सपीरियंसेस से घिरी हुई होगी। जब वो अपनी आखिरी स्टेज में पहुंचेगी तब भी वो इन बुरे हुए अनुभव जो उनके साथ हुआ है उन अनुभवों से वो घिरी हुई होगी। तो रिंग का मतलब एक अंगूठी जो पहनने होती है, तो एक सर्कल जो अनसर्कल्ड चीज होती है दैट इज कॉल्ड अनरिंग्ड, दैट इज कॉल्ड सराउंडेड बाय, घिरी हुई होगी। ऑडियंस सी वॉज मास्टर्ड बाय द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड और गो prancing प्राउड, तो यहां पर पी साउंड जो है एलिट्रेशन हुआ है, एलिट्रेशन, राइट, तो यहां पर एलिट्रेशन हुआ है। इसके बाद जब ऊपर देखेंगे थोड़ा, डेंजन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, इट इज इमेजरी यूज की गई यहां पर, इमेजरी यूज बाय द पोइट, बिकॉज ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब जब हम इमेज देखते हैं, ए सेंसरी इमेज जब देखते हैं, तो इट इज काइंड ऑफ इमेजरी, एक जंगल का, एक फॉरेस्ट का इमेज हमें दिखाई देती है। इसके बाद जो राइम स्कीम की बात करेंगे, राइम स्कीम में देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन और स्क्रीन और ग्रीन, ए ट्री और सर्टेनिटी बी, तो ऑल दिस फॉर्म में सभी में ए और बी का यूज किया गया है। द नेक्स्ट लाइन वूल ए एंड पुल ए, बैंड बी, हैंड बी,
इन द नेक्स्ट लास्ट लाइन, लाई ए बाई ए मेड एंड अफ्रेड। सो यहाँ पर राइम स्कीम रहेगा ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी, इन सभी में राइम स्कीम रहेगा ऐसे, राइट। नेक्स्ट लास्ट में जब हम देखेंगे थर्ड स्टेंजा में, When aunt is dead, her terrified hand will lie, still ringed with ordeals was mastered by. The tiger in the panel that she made. इन दो में दो जो वर्ल्ड है इनमें पैराडॉक्स है, द वर्ल्ड ऑफ ऑन्ट जेनिफर एंड द वर्ल्ड ऑफ टाइगर्स। तो यहाँ पर भी क्या है, पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स है, क्योंकि द डिफरेंट जो लाइफ है, द डिफरेंट यू कैन से द आइडियाज इट्स प्रेजेंट बाय द ऑन्ट रिच। रिच ने जो दो डिफरेंट आइडियाज, दो डिफरेंट जो वर्ल्ड को बताया गया है, तो ये अपने आप में पैराडॉक्स करते हैं। ऊपर का जो वर्ल्ड है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट द नेक्स्ट वर्ल्ड ऑफ टाइगर्स। तो जो आगे का जो जीवन है नीचे का जो, वो टाइगर के लाइफ का है और द फर्स्ट वन इज ऑन्ट जेनिफर। तो ये पैराडॉक्स दिखाया गया इन दोनों के लाइफ में, राइट। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं इसमें लिटरेरी डिवाइसेस।